Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. Good We are morning, fine, sir. sir. We And are what fine, about sir. you? What about you? What about you? I'm also fine, thank you. But in our last class, we completed the narration topic and solved exercise, answered all the questions from the exercise, grammar junction and grammar station from book B and book C. Both, na? Is there any question remaining? Yes, Let me sir. know, please. Is there anyone which was remaining? Abhishek Yadav. No, sir. नहीं बचा हुआ, sir. All the exercises were discussed, na? Yes, sir. That means that today we have to start a new section. Okay, can you please confirm that which section we have to do? The writing junction or anything else? Writing answer. Writing, sir. Okay. Before the writing junction already we have done. Grammar junction Yes, already we sir. have completed. And after grammar junction, there is a next section, the writing junction, where we are trying to learn, to frame the sentences. Grammar का ध्यान रखना पड़ता है, but you have to focus on writing rather than the grammar. But already you have learned about the grammar in the grammar junction, so that concept also would be in this section. So you all can focus on that. You all can get the difference that ki there is two articles in this section actually, and first of all we would be reading the articles. First of all we would be reading the paragraph, then we would be knowing the difference, that ki what is the difference are there and why it is, and as per the description also we would be assigning some of the tasks, some of the exercises. We have to answer all those questions. So let us start the class. Anyone from you all can read this one? Gaurav Tiwari, can you please? Yes, sir. Last week, I took my little pouch to contest in the dog show. I must say, I was not pleased with the way things were being done. First of all, they had allowed participants from across the country to apply. With all the Great Danes and St. Bernards around, my little pouch felt quite threatened. The judges said he was standoffish. Can you believe that? Okay. Some of Just some of owners. Gaurav, the only first paragraph. Uh, let us explain. Let me explain this paragraph first. Thereafter, we will be moving ahead. Actually, what happened? We are going to read a paragraph. We are going to read a passage about a dog show that is happening in the town. So what is there? It is a personal account of a dog owner. Let's say ki there is a person, he or she is having a dog, and who have registered her dog. Actually this is a lady person because already it has been used her here. That means the owner is a lady. It indicates that the owner is lady. That that means there is a lady who is having a dog, and she has registered her dog in a dog show in a town. Are you all able to understand? Getting? Yes, sir. Yes, sir. What happened in the last week? यानी पिछले सप्ताह ही I took my little. This is the personal account of the dog owner. देखिए ये who is writing this one? This is written by the dog owner. ये उनका पर्सनल अकाउंट है, एक तरीके से पर्सनल डायरी है. शी इज राइटिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस. और सेम जैसे उन्होंने लिखा है सेम वही सारी चीजें वी आर गोइंग टू रीड. So what she has written in her diary or in her account: last week I took my little pooch to contest in the dog show. Last week, पिछले सप्ताह, I took my little pooch to contest in the dog show. ये अपने एक पालतू की बातें कर रहा है. I took my little pooch, मैं अपने छोटे पालतू जो भी है पेट्स को क्या करता हूँ, एक कॉन्टेस्ट में लेके जाता हूँ. डॉग शो के कॉन्टेस्ट में लेके जाती हूँ मैं लेके गई है. आई टुक माई लिटिल. आई टुक दैट मीन्स दिस इज इन द पास्ट इंडेफिनिट. दैट मीन्स वो लेके गई. तो हम भी कोशिश करेंगे अनुवाद करते समय भी, ट्रांसलेट करते समय भी, ऑल्सो वी शुड बी स्पीकिंग इन द पास्ट इंडेफिनिट. आई टुक माई लिटिल पूछ टू कॉन्टेस्ट इन द डॉग शो. मैं अपने पालतू को या मैं अपने
उसका नाम ही एक तरीके से रख दिया गया था। उसको एक डॉग कॉन्टेस्ट में लेके गई। Okay. I must say I was not pleased with the way things were being done. I must say, मुझे ये कहना आवश्यक है कि I was not pleased, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं थी with the way things were being done, उस तरीकों से जो चीजें वहां पे घटित हो रही थी, जो चीजें वहां पे चल रही थी, जो चीजें हो रही थी, I was not happy with that way. First of all, सबसे पहले they had allowed participants from across the country to apply. सबसे पहले जो दिक्कत क्या थी वो बताना शुरू की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दे हैड अलाउड, उन लोगों ने अलाउ किया था। कौन लोगों ने? जो पार्टिसिपेंट्स जो इस एक तरीके से टूर्नामेंट को, जो इस शो को ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो ऑर्गेनाइजर थे, दे हैड अलाउड पार्टिसिपेंट्स, वो अक्रॉस द कंट्री टू अप्लाई, यानी अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री से, कंट्रीज में देयर आर मेनी स्टेट्स, देयर आर मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, तो दैट मींस कि पूरे कंट्री से, अक्रॉस द कंट्री वो लोगों को इनवाइट किए थे कि एनी ऑफ द वन अक्रॉस द कंट्री कैन अप्लाई फॉर दिस शो, फॉर दिस डॉग शो। तो दैट मीन्स कि अगर पूरे कंट्री से लोग आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कंपटीशन भी टफ होगा, बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स शुड बी देयर। Yes, sir. Yes, sir. With all the great Danes and Saint Bernards around, with all the great Danes मतलब बहुत सारे एक तरीके से प्रजातियां या बहुत सारे नृत्य के साथ, एक तरीके से with all the great dances, एक नहीं जो नृत्य होता है, ये डांस तो नहीं है बट डांस यानी नृत्य ही एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें एक घना, मतलब बहुत ही ज्यादा घना एक तरीके से वहां पे जो भीड़ भाड़ थी लोगों के, पार्टिसिपेंट्स के, और भी जो उनके ओनर्स थे, तो एक तरीके से घना, बहुत ही ज्यादा, मतलब वहां पे घना एक तरीके से भीड़ हो गई थी चारों तरफ, बहुत ज्यादा घनी आबादी को देखते हुए माई लिटिल पाउच फेल्ट क्वाइट थ्रेटेंड। जो माई लिटिल पाउच, यानी माई लिटिल पाउच किसके लिए बोला जा रहा है? पूछ यानी उसके पालतू के लिए, जो उसका पेट है, जो मेरा जो पेट है, he felt quite threatened, वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा भयभीत महसूस किया। The judges said he was standoffish. जजेस ने क्या बोला जब वो फिलहाल उस पेट्स को देखते हैं? तो जजेस what declare, the judges said that he was standoffish, यानी ये तरीके से नखरे वाला है। standoffish आप कह सकते हैं कि घमंडी, तो घमंडी नहीं कह सकते बट मगरूर टाइप का, जैसे आप कह सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक एक घमंडी कह सकते हैं, तो एक तरीके से मगरूर है, मतलब घमंडी है। कैन यू बिलीव दैट? क्या आप इसको विश्वास कर सकते हैं? क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हैं? फिलहाल ये कहीं ना कहीं जो डॉग ओनर है वो अपने डॉग, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे मतलब उनके खिलाफ एक तरीके से वहाँ की जो कमियां थी, जो उसको लग रहा था कि हाँ पूरे अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया, ये गलत किया। वहाँ के जो जजेस थे, दे वर नॉट गुड, वो हमारे जो मेरा जो पेट था उसको स्टैंडऑफिश बोल रहे थे। तो लेकिन क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि वो उसका जो बीइंग अ डॉग ओनर, अपने डॉग से, जो भी उसका अपने पेट से बहुत ही ज्यादा लगाव था और इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो अपने हाँ में हाँ मिलवाने के लिए पूछ रहा है, कैन यू बिलीव दैट? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? Some of the owners were quite arrogant. कुछ ओनर्स क्या होते हैं? बहुत ही एरोगेंट होते हैं। थोड़ा सा एरोगेंट आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अभिमानी, या मतलब घमंडी भी कह सकते हैं यहाँ पे भी। अब सम ऑफ द ओनर्स वर क्वाइट एरोगेंट, कुछ ओनर्स आपके अभिमानी होते हैं, थोड़ा घमंडी टाइप के होते हैं, मगरूर टाइप के ही होते हैं। जैसे स्टैंडऑफिश का ही सेम आपका सिनोनिम है ये। आई मस्ट से, मुझे कहना जरूरी है, एन एक्सट्रीमली फ्लेमोयंट, और ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से शरारती किस्म के, शरारती किस्म के, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फ्लेमबोयंट, आपका तेज तर्रार, शरारती। तो जो कुछ ओनर्स जो थे वो बहुत ही थोड़ा सा मगरूर टाइप के थे, और मुझे कहना आवश्यक है कि वो बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार थे, बहुत ही तेज एक तरीके से शरारती किस्म के भी थे। दे वॉक्ड अराउंड एवरीवेयर विद देयर
दे वॉक्ड अराउंड एवरीवेयर, वो क्या करते थे, वो कहीं पे भी इधर उधर चले जाते थे विद देयर मॉन्स्ट्रस स्पेसिमेंस, यानी वो मॉन्स्ट्रस यानी एक तरीके से राक्षस से मिलने वाले गुण, मतलब सब मिला के यहाँ पे जब बोला ना शरारती स्पेसिमेंस, जो उनका एक प्रजाति थी राक्षसी प्रजातियों की तरह, वो कहीं पे भी इधर उधर चले जाते थे। एंड एक्टेड ऑल सुपीरियर, और हमेशा वो क्या एक्ट करते थे, अपने आप को बहुत सुपीरियर शो करते थे। मेकिंग देम सिट एंड स्टैंड एंड बेग एट ए कमांड, माय लिटिल जेमी सर्व्ड अबाउट ए कॉर्नर, जो मेरा लिटिल जिमी था, अब यहाँ पे माय लिटिल पोच को माय लिटिल जिमी संज्ञा दिया गया है यहाँ पे। वो क्या था, एक कॉर्नर में एक तरीके से खड़ा हुआ था और बहुत ही ज्यादा अवसादग्रस्त हो गया था। द पुअर लिटिल थिंग फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड, जो पुअर लिटिल था यानी जो इसका जो पेट था जिमी था, ही फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड, वो बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस किया। ह्यूमिलेटेड में एक तरीके से अपमानित होना, अपमानित करना। सो उसने बहुत ही ज्यादा अपमानजनक स्थिति को भापा, मतलब महसूस किया, अपमानित महसूस किया। He has not eaten properly since he has got back, उसने सही से खाना भी नहीं खाया जब से वहां से आया। Not even when I made him his favorite pudding, even तब भी नहीं खाया जब उसका मैं फेवरेट हलवा बनाया। Another thing that, दूसरी बात जो अभी तो ये पहली बात बताई कि क्या क्या वहां पे तो अक्रॉस कंट्री बुला लिए थे, इट वॉज द रॉन्ग थिंग। जो जजेस थे वो थोड़ा सा मगरूर टाइप के थे, वो मेरे पेट्स को लेकर के कह रहे थे कि ये मगरूर है, और वहां के जो ओनर्स, जो अदर ओनर्स आए थे, डॉग ओनर्स, वो थोड़ा सा घमंडी टाइप के थे, वो इधर उधर कहीं पे भी चले जाते थे। उनकी प्रवृत्ति, उनका जो व्यवहार था, दैट वाज नॉट अ वेरी गुड। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। अभी और भी कुछ बातें हैं व्हाट शी इज राइटिंग इन टू हर डायरी। अनदर थिंग दैट बॉदर्ड मी वाज, जो दूसरी चीजें जो मुझे परेशान की, हाउ अनडॉगली दीज क्रिएचर्स वर, ये जो एक तरीके से कितना व्यवस्थित ढंग से ये क्रिएचर्स बनाए गए, मतलब ये व्यवस्था किए गए। देयर इज समथिंग वेरी अननेचुरल अबाउट द डॉग दैट डज नॉट चेज अ कैट व्हेन इट स्पॉट्स वन। देयर इज समथिंग वेरी, अब बताओ ये कितना अननेचुरल हो सकता है। एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं जो कंपटीशन था क्या है, हाउ देयर इज समथिंग वेरी अननेचुरल अबाउट ए डॉग, ये बहुत ही ज्यादा डॉग के संदर्भ में बहुत ही अननेचुरल होगा। दैट डज नॉट चेज अ कैट व्हेन इट स्पॉट वन, इसको किसी कैट को चेज नहीं करना था जब उसे देखे। तो दिस वाज द, हो सकता है कि एक कंपटीशन का एक हिस्सा रहा हो। Honesty won probably slipped on the rafters and landed right in the middle of a group of dogs as they were begging. Excuse me. Another thing that bothered me was how undoubtedly these creatures were, ये जो व्यवस्थित थे, जो creatures थे, वो किस तरीके से, मतलब एक तरीके से सुव्यवस्थित नहीं थे। देयर वाज समथिंग वेरी अननेचुरल अबाउट द डॉग दैट डज नॉट चेज अ कैट व्हेन इट स्पॉट्स वन। एक तरीके से ये बहुत ही नेचुरल है, अननेचुरल है। दैट इज अबाउट ए डॉग, डॉग के संदर्भ में ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अप्राकृतिक है। दैट की दे डू नॉट हैव टू चेज द कैट, जब उनको कैट दिखे तो उनको चेज भी नहीं करना है। तो एक तरीके से ये अननेचुरल ही हुआ। A nasty one probably slipped on the rafters and a nasty one probably, संभवतः जो nasty one एक तरीके से आप कह सकते हैं जो बुरे लोग थे, probably slipped on the rafters, वो rafters के ऊपर slip करते हैं and landed right in the middle of a group of dogs, और कहीं ना कहीं वो landed यानी वो वहां पे landed right in the middle of a group of dogs, जो group of dogs था उनके middle में जाकर के वो खड़े हो जाते हैं as they were begging for treats as part of the competition। और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कंपटीशन के लिए कहीं ना कहीं ट्रीट मांग रहे हो, इस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। not one of them batted an eyelid, not one of them batted an eyelid। my brave Jimmy immediately gave a chase right through some of the traps set for the obstacle race। the judges were so opinionated they actually said it was an act of वंडलिज्म। ठीक है बेटा, इसमें सब मिला के जो वहां पे रेस हुआ उसको लेकर के एक बार एक तरीके से यहाँ पे ओपिनियनेटेड मतलब पहले से ही कहीं ना कहीं एक नजरिया बना लेना, पहले से ही बहुत ही नजरिया बनाने वाले लोगों में थे। एंड
यहाँ पे वैंडलिज्म में, एक्ट ऑफ वैंडलिज्म मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वैंडलिज्म, देखते हैं क्या है, बर्बरता का कार्य, एक तरीके से ये बहुत ही बर्बरता का कार्य है। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं आप सभी को। नेस्टी वन प्रॉब्ली स्लिप्ड ऑन द रैप्टर्स, उसमें होता क्या था, जो शरारती तत्व थे संभवतः वो मतलब जो ग्रुप ऑफ द डॉग्स थे उनके मिडिल में आ जाते, एंड दे वर बेगिंग फॉर द ट्रीट्स, और एक तरीके से ट्रीट्स के लिए वो बैक करते थे एज ए पार्ट ऑफ द कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए। नॉट वन ऑफ देम बैटेड एन आईलिड माय ब्रेव जिमी, लेकिन इनमें से किसी लोगों ने, नॉट वन ऑफ देम बैटेड एन आईलिड, उनमें से कोई भी नहीं मतलब एक तरीके से इसमें प्रॉपरली एक तरीके से हिस्सा बन पाया, मतलब इसको फेस नहीं कर पाया। माय ब्रेव जिमी इमीडिएटली गेव ए चेस, लेकिन तुरंत जो मेरा जो बहादुर जिमी था वो तो एक अच्छा चेस देता, यानी उसको फिर से पीछा करता। राइट थ्रो सम ऑफ द ट्रैप्स, कुछ ट्रैप्स मतलब एक तरीके से जाल होता है। राइट थ्रो सम ऑफ द ट्रैप्स, कुछ जाल जो उन लोग के द्वारा बुने हुए जाल थे उनको एक तरीके से, ऑब्स्टेकल मतलब भी अवरोध होता है, ट्रैप्स में जाल होता है, तो बहुत सारे जाल अवरोधों को पार करते हुए मेरा जिमी फिलहाल रेस लिया। बट द जज वर सो ओपिनियटेड, लेकिन जो जज थे वो एक तरीके से पहले से ही मतलब ओपिनियनेटेड थे, यानी पहले से ही एक तरीके से कह सकते हैं कि ओपिनियन बना लेते थे किसी प्रति के प्रति। दे एक्चुअली सैड इट वॉज एन एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, वो क्या करते थे, वो साफ साफ उनका ये कहना था कि नहीं, इट इज ए वर्क ऑफ है, एक तरीके से सही काम नहीं है, ये बर्बरता का कार्य है, मतलब इट इज नॉट ए गुड थिंग्स। वन थिंग इज सर्टेन नेवर अगेन, वन थिंग इज सर्टेन, एक चीज जो सर्टेन था यानी असंभव मतलब था, नेवर अगेन एम आई सब्जेक्टिंग माई पाउच टू सच ए फियास्को, एक चीज है जो कंफर्म था, सर्टेन था, निश्चित था कि नेवर अगेन, मैं कभी भी इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मैं अपने पाउच को सब्जेक्ट यानी उसको करता यानी उसका हिस्सा नहीं बनने दूंगा, कहने का मतलब है नेवर अगेन एम आई सब्जेक्टिंग माई पाउच टू सच ए फियास्को, तो इस तरह के फियास्को का, इस तरह के कंपटीशन का हिस्सा मैं अपने पाउच को नहीं बनने दूंगा दोबारा। नाउ रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये तो रहा जो अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे फियास्को यानी उपद्रव की बातें बोल रहा है कि इस तरह जो बर्बरता जो आपका इस तरह का एक तरीके से हुड़दंगई का हिस्सा मैं अपने पाउच को नहीं बनने दूंगा, ये तो रहा अभी आपका जो डॉग ओनर था उसके उनके शब्दों में। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसी कंपटीशन को कोई न्यूज़पेपर जब लिखता है तो हाउ दे हैव रिटन इन द न्यूज़पेपर, वी ऑल हैव टू गो थ्रू दिस वन, तब दोनों में हमें डिफरेंस दिखेगा, तो दैट इज द थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी in this section. Read the newspaper report which had appeared in the local newspaper about the same dog show. उसी सेम डॉग शो के लिए न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट अपेयर हुआ नेक्स्ट डे, उसको एक बार पढ़ते हैं। दिस इज द सिटी, द प्लेस, 25th of July. The 25th annual dog show was held in town last week. For the first time in its history, the organizers had opened its door to participants from all over the country. As a result, the show had a wide variety of breeds from Great Danes to pugs. They sat in their assigned seats with the proud owners. इसमें हुआ क्या, अभी वहां पे था, घमंडी था, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या हुआ, जो 25वां एनुअल डॉग शो था वो टाउन में फिलहाल फिर से हेल्ड हुआ, यानी उसको कंडक्ट किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इतिहास में, यानी हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस कंपटीशन के, उन लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री, वो पूरे देश के लिए उन्होंने डोर ओपन कर दिया था फॉर द पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। लेकिन इसके लिए रिजल्ट क्या आया, फलस्वरूप बहुत सारा भीड़ हुआ, और देयर आर वैरायटी ऑफ ब्रीड्स, बहुत सारे प्रजातियों के फिलहाल वहां पे पेट्स आए, डॉग्स आए, विद द ग्रेट डांसेस टू द पग्स, फ्रॉम ग्रेट डांसेस टू द पग्स। दे सैट इन देयर असाइंड, वो लोग अपने जो भी असाइंड सीट्स था उस पे बैठे, विद द प्राउड ओनर, अपने प्राउड ओनर्स के साथ, जो उनके साथ जो ओनर्स थे, डॉग ओनर्स थे, उन लोगों के साथ। इन द इंट्रोडक्टरी राउंड, शुरुआती राउंड में क्या हुआ, द डॉग्स वर परेड ऑन द रैम्प बाय देयर ओनर, डॉग्स ने क्या किया, रैम्प पे एक बार परेड किया विद देयर ओनर्स।
द कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमशः, लगातार. द कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स टेस्टेड द डॉग्स ऑन देयर डिफरेंट स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड डिसिप्लिन. लगातार चलने वाले राउंड्स ने डॉग्स की स्टैमिना और उनके डिसिप्लिन और उनकी जो मजबूती थी, स्ट्रेंथ को परखा. अब फिलहाल यही स्ट्रेंथ था, स्टैमिना यही था, डिसिप्लिन, मेन डिसिप्लिन वही था कि आपका रेस में चलते समय कोई कैट सामने कर देता था और डॉग कैट के पीछे ना भागे, तो दैट मीन्स कि दे आर इनडिसिप्लिन्ड. उस कंपटीशन का शायद इस तरीके का हिस्सा रहा वो. तो दे वर टेस्टेड विद डिफरेंट स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड डिसिप्लिन. द कंपटीशन वाज क्वाइट टफ एंड द जजेस फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेलेक्ट वन विनर. जो कंपटीशन था वो बहुत ही ज्यादा टफ था और जजेस फाउंड इट डिफिकल्ट, जज लोगों को ये बहुत ही मुश्किल रहा कि हु इज द विनर. विनर को तलाशने में बहुत ही डिफिकल्टी हुई, बहुत ही मुश्किल आई. द शो वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज. जो शो था वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया. द ओनली मिशैप, जो एक मात्र जो थोड़ा सा लेकिन लगा, was that a cat accidentally slipped from the raptors and they fell right in the middle of the course. Okay. Only mishap, एक तरीके से जो अचानक से जो लेकिन वाली बात रह गई, जो रह गया एक क्या है, एक कैट है जो एक्सीडेंटली गलती से स्लिप कर गई, फिसल गई और जाकर के स्लिप करके वो कहाँ पे गिर गई, इन द मिडिल, फेल राइट इन द मिडिल ऑफ द कोर्स. जो डॉग का कोर्स था जहां पे वो लोग दौड़ रहे थे उनके बीच में जाकर के गिर गई. ऑल द डॉग्स एक्सेप्ट फॉर वन लिटिल पाउच. सभी डॉग्स फॉर वन, ऑल द डॉग्स एक्सेप्ट फॉर वन, यानी एक डॉग को छोड़ करके बाकी सारे एक कौन, वन, ये लिटिल पाउच वन के लिए यूज किया गया. लिटिल पाउच वर वेल ट्रेन्ड एंड रिमेन्ड all the dogs except for one little pouch were well trained and remained unperturbed. जो बाकी सारे डॉग थे उस केवल एक डॉग को छोड़ करके एक तरीके से उनको मतलब प्रॉपरली बिल्कुल ट्रेंड थे और अनपर्चुनेट मतलब एक तरीके से बेपरवाह है. एक तरीके से जो एक डॉग को छोड़ करके बाकी सारे ट्रेंड थे, लेकिन एक जो डॉग लगा था लिटिल वन, दैट वाज एक तरीके से बेपरवाह था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. द पाउच हाउएवर चेज द कैट. उसने क्या किया, जो पाउच था वो अपना रेस छोड़ करके उस कैट को चेज करने लगा. थ्रू द ऑब्स्टेकल कोर्स एंड द डैमेज सम ऑफ द ट्रैप्स. और कई सारे ट्रैप्स को, कई सारे जाल को, यानी कई सारे जो ऑब्स्टिकल थे उसको नुकसान भी पहुंचाया. एज अ रिजल्ट द पाउच वाज मार्क्ड डाउन मच टू द चार्जिंग ऑफ इट्स ओनर. और फिर उसके बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट उस पाउच को एक तरीके से मार्क डाउन कर दिया गया, यानी उससे निकाल दिया गया. एंड मच टू द चार्जिंग ऑफ इट्स ओनर, और उस ओनर से थोड़ा बहुत उसके वजह से चार्ज भी पड़ा. द विनर वाज अ लिटिल जर्मन शेफर्ड. जो विनर हुआ वो कौन था, दैट वाज अ लिटिल जर्मन शेफर्ड पपी फ्रॉम द कैंसस व्हिच इम्प्रेस्ड द जजेस विद इट्स रिमार्केबल डिसिप्लिन. एक जर्मन शेफर्ड था, वो विनर घोषित हुआ और उसने जजेस को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया, प्रभावित किया विद इट्स रिमार्केबल डिसिप्लिन. बहुत ही ज्यादा छाप छोड़ देने वाली डिसिप्लिन से. इट हैज ऑल्सो बीन सेलेक्टेड फॉर द K9 यूनिट. और ये K9 यूनिट तो उनका होगा, पर्टिकुलर यूनिट होगा, उसके लिए ये सेलेक्ट भी हुआ. तो दिस इज व्हाट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. अभी इसके पहले वाला जो आपने ये पैराग्राफ पढ़ा था, पैसेज पढ़ा था, इट वाज फ्रॉम द ओनर. अब जिसके जो डॉग ओनर का जो डॉग था वो रेस छोड़ करके बिल्ली के पीछे भाग जाएगा, दे आर नॉट इन डिसिप्लिन, तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा. तो वो जो वही बात है ना कि जिसको समझ में नहीं आएगा, नहीं खराब है, जब रेस से बाहर ही हो गया तो रेस ही खराब है, अरे वो तो बेईमानी कर रहे थे. यही होता है मैच वगैरह में. तो यही सारी चीजें यहाँ पे भी हुआ. नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, लुक एट द अंडरलाइन पार्ट्स. डू यू नोटिस अ डिफरेंट इन द टोन. जो आपको ध्यान देना है, अभी यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए थे जिसकी मीनिंग तलाश पाना बड़ा मुश्किल है. स्टैंड ऑफ फेस, क्वाइट एरोगेंट, ये दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टोन था घमंडी, एक्सट्रीमली फ्लैमेंट यहाँ पे बोला गया. एक्सट्रीमली फ्लैमेंट में से एक तरीके तेज तर्रार, यानी तेज तर्रार मतलब राक्षसी जैसे तेज, बहुत ज्यादा बलवान. एक होता है तेज तर्रार मतलब एक अच्छे बच्चे को भी तेज तर्रार बोला जाता है. एक गड़बड़ जो यहाँ पे मॉन्स्ट्रस स्पेसिमेंस, मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षसी
प्रजातियों वाले तेज तर्रार की से तुलना की जा रही है। एक्टेड ऑल सुपीरियर, यानी यहाँ पे फिर घमंडी बोला जा रहा है। पुअर लिटिल थिंग्स, तो यहाँ पे अपने जो पेट है, अपने जिमी को वो पुअर लिटिल पूछ, इस तरीके से वो यहाँ पे मतलब जो टोन है अपने अपने पेट के लिए, मतलब एक लिटिल, एक बेचारा शब्द से, यानी बहुत ही ज्यादा मासूम सा लगने वाला, ऐसे टोन में यहाँ पे इसको फिलहाल इंडिकेट किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है। बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स थे या ऑर्गेनाइजर्स में जो डिसीजन मेकर्स थे, जजेस थे, उनके लिए आपका घमंडी, और जो अदर पार्टिसिपेंट्स थे वो भी घमंडी, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, इधर उधर कहीं पे भी बैठ जाते थे। तो इस तरह की बातें उस डॉग ओनर ने किया। लेकिन जब एक न्यूज़पेपर ने जब यहाँ पे लिखा तो दे वर रिटन वट एवर इज देयर, क्योंकि वो तो फिलहाल तो ना डॉग ओनर का था ना ऑर्गेनाइजर का था। न्यूज एजेंसियां तो स्वतंत्र होती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, तो दे हैव रिटन दिस। तो व्हाट यू ऑल नीड टू नोटिस, यू ऑल नीड टू नोटिस अ डिफरेंस इन अ टोन। जो टोन में जो डिफरेंस आया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उस कंपटीशन के बारे में एक्सप्लेन करने में, जो टोन में जो डिफरेंस आया। द पर्सनल अकाउंट इज फ्रॉम द ओनर ऑफ द पोच एंड इज दस बायस्ड इन इट्स फेवर। जो पर्सनल, जो भी डॉग ओनर था, जो उसका पर्सनल अकाउंट था, जो डायरी में जो उसने लिखा था इस कंपटीशन के बारे में, कहीं ना कहीं पढ़ने से लग रहा है कि जो डॉग ओनर था वो कहीं ना कहीं बायस था। वो बायस था नहीं, वो एक तरीके से एक पक्ष में लिखा गया था, वो भी डॉग के पक्ष में लिखा गया था, क्योंकि वो हर जगह कंपटीशन की बुराई कर रहा था और अपनी डॉग को वो मासूम बता रहा था कि नहीं ये तो अननेचुरल है कि बीच में कैट रख दिया जाए, मिला दिया जाए और फिर वो कैट के पीछे ना भागे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो बायस्ड था। द सेकेंड अकाउंट इन दैट न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जब सेकेंड अकाउंट जो आपने देखा जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहा है, इट इज अ नेचुरल, ये एक तरीके से न्यूट्रल है। इट इज अ न्यूट्रल एज इट डज नॉट टेक एनी साइड्स एंड रिपोर्ट्स दिस इवेंट इन एन अनबायस्ड मैनर। जो आपका ये न्यूज़पेपर था इट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी भी साइड से नहीं था। तो जो इनकी रिपोर्ट रही ये आपका न्यूट्रल रहा, ना तो ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में रहा, ना ही जो डॉग ओनर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी तरफ से कुछ बोला गया, यानी कहीं पे भी आपको बायसेस नहीं दिखेगा। We know that a newspaper report is always informative and never opinionated. हमें पता है। अब देखो वहां पे डॉग ओनर ने क्या बोला कि जो जजेस थे ना, दे वर ओपिनियनेटेड, यानी वो पहले से ही एक तरीके से अपनी ओपिनियन बना लेते थे। लेकिन हमें पता है कि जो न्यूज़पेपर एजेंसियां होती है दे आर इंडिपेंडेंट, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं काम करती। फिलहाल ऐसा नहीं है इंडिया में, या इंडिया में क्या लगभग हर कंट्रीज में होता है कि कुछ एजेंसियां होती हैं, लोग कराते हैं। लेकिन जो पढ़ने के लिए ये है कि जो सही चीजें हैं जो होनी चाहिए, न्यूज एजेंसियां जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको होनी भी चाहिए। एंड दे शुड नॉट टेक एनी बायसेस, वो किसी की तरफ से कोई पक्ष वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। और जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होते हैं ये हमेशा ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं, यानी एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने वाले रहते हैं। और ये नेवर ओपिनियनेटेड, ये पहले से ही कोई ओपिनियन किसी पर्टिकुलर पक्ष के लिए नहीं बना लेते। अगर कहीं दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो दे वुड बी गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट इंसिडेंट। ये नहीं होगा कि इन्होंने गड़बड़ किया या इन्होंने किया, ये सारी चीजें नहीं, जो चीजें हुई रहेंगी उसी को इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको प्रोवाइड करते हैं। इट शुड ओनली इन्फॉर्म द रीडर एंड नॉट कलर देयर जजमेंट। ये क्या करते हैं, जो रीडर को केवल इन्फॉर्म करने का काम करते हैं। जो न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज एजेंसियां होती हैं, दे शुड ओनली इन्फॉर्म द रीडर, ये सिर्फ रीडर्स को इन्फॉर्म करती हैं, एंड नॉट कलर द जजमेंट, और जजमेंट की कलर से उसको कलर नहीं करती हैं। इसमें ये कभी नहीं बताते हैं कि which is the wrong and which is the correct. They convey any information in the correct tone. We need to be aware of the connotations of various words. आप लोगों ने vocabulary में connotations पढ़ा था, उसी का मेरा प्रूफ है, उसी का किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को कन्वे करने के लिए हमें कहीं जो कैनोटेशंस है आपका वेरियस कैनोटेशंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो उसको यूज करना, वी शुड बी हैव टू अवेयर विद दैट कैनोटेशंस ऑफ दैट वर्ड, कि आप प्राउड कहाँ पे यूज करेंगे, या फिर यहाँ पे जो जैसे कई सारे दो और सिनोनिम मिल चुके हैं आपको। लेट्स से व्हाट वाज देयर, स्टैंडऑफिश, एरोगेंट, आप कहाँ पे यूज करेंगे, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन। अब नाउ there is another activity, it is for you all. Read the article carefully, underline words
and phrases that reveal the writer's voice against the mayor and replace them with more neutral words and phrases. Imagine what the actual conversation might have been like and transcribe it. बेटा इसमें क्या करना है, ये फिलहाल फिर से एक क्या है, पर्टिकुलर जो राइटर्स है किसी मेयर के खिलाफ शायद बोलेगा. यहाँ पे कुछ आर्टिकल लिखा है, यू ऑल हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स. आपको ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है जो कि कहीं ना कहीं विरोधाभास, एक मेयर के खिलाफ विरोधाभास मतलब विरोध करता हुआ प्रतीत करे. जैसे कि डॉग ओनर ने कंपटीशन और कंपटीशन ऑर्गेनाइजर और जज वगैरह के लिए यूज किया था. तो जो आपका नेगेटिव कैनोटेशंस है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. तो नेगेटिव कैनोटेशंस को आप आइडेंटिफाई करें, अंडरलाइन करें. उसके बाद इसी आर्टिकल को आप अपने लैंग्वेज में इस तरह से लिखें जहां पे उस जो नेगेटिव कैनोटेशंस है उसको न्यूट्रल कैनोटेशंस में आप कन्वर्ट कर दें. दैट इज द टास्क फॉर फ्रॉम दिस सेक्शन. व्हाट द एक्चुअल कन्वर्सेशन माइट हैव बीन लाइक एंड ट्रांसक्राइब इट. हाँ, एक्चुअल में जो हुआ, जो कन्वर्सेशन वो क्या हुआ. एक पर्सन, एक राइटर है, देयर व्हाट दे हैव रिटन, देयर इज अ 4 minute, लेट अस रीड. A heated argument broke out in the town square yesterday when the mayor's private car collided with another car. एक बहुत ही ज्यादा heated argument हुआ पिछले टाउन में. when the mayor's private car, जब मेयर्स की जो प्राइवेट कार थी एक दूसरे कार से टकरा गई. The other car belonged to Mr. Roger. जो दूसरी कार थी वो किससे बिलोंग करती थी? मिस्टर रोजर से. A respectable senior member of the community. वो कम्युनिटी के बहुत ही रिस्पेक्टेबल सीनियर मेंबर थे, सदस्य थे, जाने माने हस्ती थे. मिस्टर रोजर was justifiably angry and rightly demanded that the mayor should pay for the damage to his car. The argument quickly escalated when the mayor tried to make light of the situation. This imaged Mr. Roger, who reminded the mayor that prior to his election, समय लाकेस क्या हुआ, जब टकराई कार तो जो मिस्टर रोजर थे उन्होंने पैसे की डिमांड किया. तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मेयर थे उन्होंने थोड़ा सा उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश की. लेकिन फिर वहीं पे मिस्टर रोजर ने क्या, उनको आने वाले कलेक्शन के मतलब he reminded the mayor that prior to his election, उन्होंने कुछ बातें रिमाइंड कराया कि prior to the election, यानी इलेक्शन के पहले he had promised that traffic rule violation would be dealt with seriously. जो ट्रैफिक रूल है वो बहुत ही सीरियसली डील किया जाएगा. और ट्रैफिक रूल मेयर नहीं तोड़ दिया था कार भिड़ा के. Like it used to be the when his father had been mayor. When the mayor tried to remind him of some of the new traffic regulation he had imposed, he accused the mayor of being a man of no principle, one who did not know the value of tradition by this time. सब मिला के जब वो मिस्टर रोजर ने रिमाइंड कराया मेयर को, आपने पहले इलेक्शन के पहले जो आपका ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड कुछ अच्छे रूल्स आप लेके आएंगे. इन रिस्पॉन्स जो मेयर थे उन्होंने कुछ रूल्स भी बताया कि दिस काइंड ऑफ द रूल्स ऑलरेडी वी हैव इम्पोज्ड, यानी इंप्लीमेंट किया है. लेकिन फिर भी जो मिस्टर रोजर ने एक तरीके से उनको अक्यूज किया, उनको आरोप लगाया कि ही इज अ मैन ऑफ नो प्रिंसिपल, यानी बिना सिद्धांत के आदमी है और जो किसी भी ट्रेडिशन या किसी रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं. बाय दिस टाइम अ क्राउड हैड स्टार्टेड गैदरिंग, और इसी समय जो क्राउड था वो इकट्ठा होना शुरू कर दी. एंड अ फ्यू एडेड देयर वॉइस टू मिस्टर रोजर्स saying that he had only been elected because of his बायोशिस चार्म्स. और कुछ लोग इसमें से ये भी कह रहे थे कि क्योंकि ये एक बायोशिस चार्म की वजह से ही केवल इलेक्ट हुआ है और बाकी कोई स्किल नहीं है. While some of the others made an effort at preachingly dispelling the crowd, the mayor realized that the people were not happy with the way he had been running things and quickly drove away, muttering about long-term goals and the need for better security measures. तभी क्या हुआ, जो मेजर है उसने ऑब्जर्व किया, उसने महसूस किया कि जो पीपल्स आर नॉट हैप्पी, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, पीपल्स आर नॉट हैप्पी, लोग खुश नहीं है. और थोड़ा सा मटरिंग करके, लॉन्ग टर्म गोल बता करके कि चलो हम 4 साल में सभी के पास घर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसे ऐसे गोल बता करके वहां से वो दूसरी जगह चला गया. ठीक है, तो अब 1 ही मिनट बचा है, तो अच्छे दिन हम लोग के भी आएंगे. आई होप स्कूल खुल जाएगा, सुनने में आ रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, बिकॉज बाकी कोरोना तो सिर्फ स्कूल में ही फैला है. चलिए ठीक है,
दिस इज द वे, दिस इज द वे एक जो रिपोर्ट एजेंसी जो यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करती है. नाउ यू ऑल हैव टू राइट. आपको इसी को जो मेयर के पक्ष में क्या है, जिस जो राइटर ने मेयर के अगेंस्ट में लिखा है, अब इसी को आप न्यूट्रल वॉइस में आपको लिखना है. यू ऑल नीड टू राइट. और एक बार लिखने की कोशिश करिएगा. इट इज नॉट ए वेरी इजी टास्क, लेकिन एक बार कोशिश करिएगा तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल. और इन केस कोई दिक्कत आती है, मैं आपको इसका आंसर भी कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश करूंगा और एक सजेस्टेड आंसर